हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ अवर यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। As we know that at presently we are on 4.6.1 is the types of hybridizations. So in types of hybridizations we all know that there are various type of hybridizations which is involving s, p and d orbitals. And these various type of the hybridizations like sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 types of hybridizations of atomic orbitals. So these different types of hybridizations that we have to understand in last sessions about the sp hybridizations. So in these sp hybridizations we know that this type of the hybridizations involve the mixing of 1s and 1p orbitals. So which is resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbitals, and these suitable orbitals for sp hybridizations are s and pz, preferably pz. And if the hybrid orbitals are lie along the z-axis, so we know that in each sp hybrid orbitals has a 50% s character and 50% p character. So such a molecule in which the central atom is sp hybridized and linked directly to two other central atoms possess linear geometry, which is represented in this model too. Right? This is the best example of sp hybridizations. Here the two sp hybrid points in opposite directions along the z-axis with projecting positive lobes and very small negative lobes, which provides more effective overlapping, resulting in the formation of stronger bond. So in these sp hybridizations we studied about the molecule of BeCl2. Right, so this is Be and this is 2Cl. So this is the sigma bond. Sigma bond is the formation of this sigma bond. Bond angle is 180 because it's a linear in nature. So this is all about the BeCl2. Okay, next is sp2 hybridizations. So we know that in the case of sp2 hybridizations, there is the involvement of 1s and 2p orbitals in order to form a 3 equivalent sp2 hybridized orbital. For example, in the case of BeCl3, right? So we know that in the case of BeCl3, there is a sp2 hybridizations phenomena can take place, and the geometry is a trigonal planar with a Cl boron Cl bond and angle of 120. So this is the one more example of sp3 hybridizations, right? So this is the structure. Boron is a central atom, and here 3 chlorine or 3 fluorine or 3 hydrogen, whatever. Suppose that this example is also related with a BH3 too, right? So in this case of BH3, so it's a boron trihydride. The same example. So we get a 120 is the bond angle, and it's a trigonal planar. Okay. So this is about the sp2 hybridizations. Then we switch over to the sp3 hybridizations. So we know that in the case of sp3 hybridizations, which is explained with the help of methane, right? So here in this case of sp3, there is a mixing of 1 s orbital and 3 p orbitals, and the valence shell to form a 4 sp3 hybrid orbital of equivalent energies as well as set. And we know that in the case of sp3, 25% s character and 75% of p character. So in each sp3 hybrid orbital, the 4 sp3 hybrid orbitals are directed towards to the 4 corners of the tetrahedron, which is given by the shape of this methane. This is the shape of methane. So we know that this is the bond angle here is a 10928. Same way 10928 is the bond angle, and its a shape is a tetrahedral shape, or which is given by like that. So it's a best example of methane. Methane is a sp3 hybridized, and here the central atom does not contain a lone pair. Okay, so the perfect bond angle that we have to observe is 109 degree and 28 minutes. In this case, the percentage of S is 33.33 and remaining P is 66.6. Here in this case of sp hybridization, the percentage of S character
is a 50% and percentage of P character is a 50%. It means that percentage of S is greater in nature. So if the percentage of S is greater in nature, it means that these hybrid orbitals become bulkier and shorter, while when the percentage of P or D is increasing, so the orbitals become longer and thinner. Number 2, percentage of S character increase, the energy of the hybrid orbital decrease, and the percentage of P and D increase, it means that the energy of hybrid orbital is increased. So I think so this is a very 5 minutes highlights of our last lecture. Okay, now we move to the same concept of sp3 hybridizations with unique examples like ammonia and water. So now we start with the examples of ammonia and water. So we know that in the case of ammonia, right, we know that this ammonia industrially prepared with the help of Haber's process when nitrogen and hydrogen, N2 and H2, okay, so when they attach with each other, so it's converted into ammonia. So first here our central atom is what? Central atom is nitrogen, so 7 number nitrogen. So first write down the electronic configuration is like that: 2s2, 2p2, 2p3. So 3 plus 2 plus 5 plus 2 means 7. So in this case or otherwise we have to write like that: this is 2s2, 2p3. ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा भी बता सकते हैं ना, देखिए ये है 2s का और ये है 2p का, राइट। अभी देखिए आप नाइट्रोजन में क्या है कि ये जो इनर है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि लिनस पॉलिंग का जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशंस, जो इनर होती है वो पार्टिसिपेट नहीं हो पा रही है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अनपेड तो कितने हैं? 3 ही है। तो कई लोगों को क्या लगता है कि सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा देंगे तो तीनों हाइड्रोजन आने की वजह से वो ओवरलैपिंग हो जाएगा और NH3 बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके और इसके घर में आने का एक प्रॉब्लम क्या है, वो PX, PY और PZ की जगह है। और हमें मालूम है कि इंडिविजुअल PX, PY और PZ एक दूसरे से 90 डिग्री पर पड़े हुए हैं, राइट। तो उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 होता है, लेकिन एमोनिया का जो हमें बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो इतना 90 नहीं मिल रहा है, वो नियर अबाउट 109 डिग्री 28 मिनट के पास मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो एमोनिया का जो बॉन्ड एंगल मुझे मिल रहा है इज नियर अबाउट 107.8 डिग्री, यानी कुछ कहानी में यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। ये जो हम सोच रहे हैं इस तरह से, यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी, बेसिक वैलेंस बॉन्ड थियरी हम समझा नहीं पाए रहे, तो हमें लिनस पॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो वंस अगेन इन द एमोनिया मोलिक्यूल द नाइट्रोजन एटम इज 1s2, 2s2, 2p3, सो हैज 3 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स, बट बाय मिक्सिंग ऑफ अभी क्या करेंगे, ये दोनों फिर भी मिक्सिंग हो पाएगा 2s और 3p, तो यानी ये चारों का मिक्सिंग होके वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। आर ऑब्टेन विद 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 और 2 5 है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है वो अपना हाइब्रिडाइज करेंगे और 4 sp3 हाइब्रिडाइज बनाएंगे, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्म अ सेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द अमोनिया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए आप ये जो दिखा रहे हैं ये 2s का है और ये 2p का है, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका पहले मिक्सिंग कर देता हूं, सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो अभी हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ना। देखिए कहीं लोगों को क्या लगता है कि सर जी इसमें तो कोई चेंज ही आपने नहीं किया हुआ है। नहीं, मैंने चेंज किया हुआ है, ये चारों जो ऑर्बिटल्स है उसको मैंने चेंज किया हुआ है, और फिर यहाँ पे आपको यही पिक्चर दिखाई देगा। लेकिन ये अभी आप ऐसा सोचिए कि चारों का मिक्स करके मैंने ये दिया हुआ है। सो अभी जो देखिए, अभी यहाँ से कौन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। सो कलर्ड येलो, यहाँ पे देखिए ये जो डाउनवर्ड स्पिन वाला मैंने दिखाया है वो हाइड्रोजन का है, और इस तरह से वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि these 3 hybrid orbitals overlap with 1s orbital, 2s orbital of hydrogen atom, 1s orbital of hydrogen atoms to form a 3NH sigma bond हो जाएगा। तो 3NH sigma bond होने की वजह से we know that the force of repulsion between a lone pair
और बॉन्डेड पेयर, क्योंकि इसमें लॉन पेयर भी है, वो तो बॉन्डेड पेयर पे वो ज्यादा रिपल्सन VSEPR मेरा जो प्रिंसिपल था उसकी वजह से करेंगे. So the molecule thus get distorted and the bond angle is reduced to 107 degree from 109 degree and 28 minutes. And we know that the geometry of such a molecule is like that. इट्स अ पिरामिडल. देखिए अभी मैं आपको इसका शेप में यहाँ पे दिखा रहा हूँ. फिर से मैं आपको पहले मैं क्या करूंगा, 4 sp3 है ना, टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, यानी वो हाइब्रिड कितना करेगा, 4 ही बनाएगा. इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने नहीं है 5 है या 6, ये आपको नहीं है. आपको देखने कितनी ऑर्बिटल्स का यहाँ पे मिक्सिंग हुआ है, 4. तो वो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, 4. और 4 लोग को मुझे स्पेस में रखना है, तो मैं कुछ इस तरह से रखूंगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. आप जो देख रहे हैं ना, इस तरह से नहीं है, ये है ना आपके सामने आ रहा है, तो ये भी आपके सामने आ रहा है, तो ये पीछे जा रहा है और ये प्लेन पे ही है. ये जो प्लेन है मेरा उसके पर ही खड़ा हुआ है. तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने अभी ये इसमें क्या है, ये जो sp3 ऑर्बिटल्स है ये ओके. बाकी के सब में तो एक इलेक्ट्रॉन थे ही. अभी वहां पे क्या आ जाएगा, तो क्या हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा. जैसे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया है. देखिए तो अभी जो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ना. देखिए यहाँ पे क्या मुझे दिखाई दे रहा है, ये है ना वो लॉन पेयर है, उसने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, फिर भी ये लॉन पेयर है. और ये सभी देख रहे हैं वो बॉन्डेड पेयर आप देख रहे हैं. ठीक है, ये बॉन्डेड पेयर है, यानी मुझे जो एमोनिया का शेप मिलेगा, देखिए ये फिर से मैंने एमोनिया का शेप दिया हुआ है. ये नाइट्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस के बीच में एक हाइपोथेटिकल लाइन हम सोचेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड सिमेट्री दिखाई दे रही है वो सिग्मा की है. सेम वे यहाँ पे भी सिग्मा है और यहाँ पे भी सिग्मा है. लेकिन मीथेन में क्या था, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड था. इसकी बजाय यहाँ एमोनियम में यहाँ पे क्या है, लॉन पेयर दिख रहा है. आपको दिख रहा है लॉन पेयर, देखिए ये लॉन पेयर है. तो ये लॉन पेयर का जो बॉन्डेड पेयर के साथ, देखिए ये बॉन्डेड पेयर है, ये तीनों बॉन्डेड पेयर है, तो उसके ऊपर उसका क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा. there is a definitely there is a repulsion between bonded pair and bonded pair too. लेकिन उस तरह से ही वो पड़े रहेंगे, क्योंकि उसको हमें मालूम है कि 109 डिग्री 28 मिनट इतना बढ़िया एंगल है कि वहां पे रिपल्सन बिल्कुल कम है. लेकिन जैसे हमने यहाँ पे मीथेन को देखा था, देखिए मैंने यहाँ पे आपको मीथेन दिखाया था, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ NH3 एमोनिया का मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे है ना वो बॉन्डेड पेयर है, यहाँ पे लॉन पेयर है. तो लॉन पेयर का यहाँ पे रिपल्सन बढ़ने की वजह से देखिए वो इस तरह से आएगा, तो ये उस तरफ चला जाने की वजह से वो बॉन्ड एंगल में डिक्रीज कर देगा. तो मैं आपको इस तरह से ही दिखा रहा हूँ कि जैसे बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, तो कि पहले तो उसका शेप मुझे कहाँ क्या मिला हुआ है. ठीक है, उसका शेप जो मेरे ज्योमेट्री मेरे पास है वो है पिरामिडल ज्योमेट्री है. पिरामिडल ज्योमेट्री मुझे मिली है. कई बच्चे मुझे इसलिए ऐसा भी पूछ रहे हैं, एक ने पूछा भी था मुझे क्वेश्चंस कि सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल, दोनों में डिफरेंस क्या है. देखिए ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, यह क्या है, पिरामिडल है. दोनों में डिफरेंस क्या है, एक नजर से देखेंगे ना तो कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन हम पिरामिडल तभी बोल सकेंगे जब भी उसके पास लॉन पेयर होगा, तो ही वो पिरामिडल में चला जाएगा. अदरवाइज वो टेट्राहेड्रल पे ही रहेगा, क्योंकि उसके जो यहाँ पे एंगल यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना उसके साथ कोई न्यूक्लियस जुड़ा, एक का ही न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, दूसरे का नहीं है. यानी ये एक का ही कंट्रोल रख रहा है, दूसरे का कंट्रोल नहीं रख रहा है, इसलिए ये पिरामिडल शेप में चला गया है. और ये जो है टेट्राहेड्रल शेप में परफेक्टली यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई देगा. और दूसरा उसका जो बॉन्ड एंगल है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 107.8 डिग्री. 107.8 डिग्री मुझे यहाँ पे परफेक्ट बॉन्ड एंगल में आपको दिखा रहा हूँ. आपकी बुक में आपको 107 डिग्री दिखाया हुआ है, वो भी चलेगा. लेकिन कहीं बच्चे अच्छी तरह से अपनी रेफरेंस बुक जैसे पढ़ते हैं तो परफेक्ट बॉन्ड एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया. तो ये मैंने एक एग्जांपल्स आपको कहा किसका दिया, sp3 का दिया. लेकिन मीथेन और ये एमोनिया के बीच में डिफरेंस आपको क्या दिखाई दिया, हियर द सेंट्रल एटम डज नॉट हैविंग लॉन पेयर, व्हाइल इन द केस ऑफ एमोनिया दिस नाइट्रोजन हैविंग अ लॉन पेयर. ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और वो है पानी का, यानी वाटर का.
वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता है। तो हमें देखिए ये 8 नंबर ऑक्सीजन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी? 1s2 2s2 2p4। यानी मैं शॉर्टकट में इसका लिखूं तो मुझे क्या लिखा है, मैं इस तरह से लिख पाऊंगा 2s2 2p4। उसको मुझे दिखाना है तो मैं किस तरह से दिखाऊंगा? ये 2s का है और ये 2p का है, रिगार्डिंग टू और द फॉलो द और ओबे द होन्स रूल। तो मैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं, मैंने इवन के कई फैकल्टीज भी ऐसी देखी है कि वो इस तरह से समझाते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो पानी बन जाएगा। और क्योंकि उसने पहले से ही पानी है ना, वो कुछ इस तरह से ही देखा होगा है, क्योंकि HOH है तो वो पहले से ऐसे ही सोचेंगे ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है। नो, इट्स नॉट लीनियर इन नेचर। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक PY है और PZ, दोनों में हाइड्रोजन आएगा तो वो 90 के बॉन्ड एंगल में होगा। लेकिन जैसे मैंने H2O का बॉन्ड एंगल देखा ना, तो वो मुझे 104.5 डिग्री पे मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो sp3 की तरह चल रहा है। यानी ये जो हाइड्रोजन आएंगे जब भी ऑक्सीजन के घर पे, तभी ऑक्सीजन है ना वो अपना जो घर है, अपना जो होम है, उसका रिनोवेशन करेगा। कहाँ का किसका रिनोवेशन करेगा? 2s और 2p का रिनोवेशन वो इस तरह से करेगा कि वो चारों ऑर्बिटल्स का क्या करेगा? रिमिक्स कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये 2s का है, फिर ये सब कुछ यहाँ पे इस तरह से आ गया है ये। ओके, तो कितने ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे। बाद में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं हुआ है। इसमें मैंने मिक्सिंग करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये वाटर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी भी मैं आपको और एग्जांपल्स भी वाटर का मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वाटर का एग्जांपल्स है, देखिए देखा, ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है और ये दोनों लोन पेयर है। एक तरह से देखेंगे ना तो ये टेट्राहाइड्रल ही दिखाई देगा, लेकिन अभी टेट्राहाइड्रल नहीं, क्योंकि दोनों 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर अभी पहले आगे वाले केस में क्या था, एमोनिया वाले केस में क्या था? देयर इज अ सिंगल लोन पेयर रिपल्सन ओवर द बॉन्डेड पेयर। यहाँ तो पहले से ही लफड़ा हो रहा है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ही ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन होना है। फिर लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर है और बॉन्डेड पेयर कह रहे हैं, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये है ना थोड़ा बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? और स्ट्रेस देगा। यानी जो बॉन्ड एंगल आपका है वो है ना रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका डिस्टॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, तो अब पानी में जो ये एग्जांपल्स आप समझ रहे हैं, तो मैं आपको 4 उसके, क्योंकि उसके 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी वो मुझे इस तरह से ही दिखानी पड़ेगी जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था। ये दोनों आपके सामने आ रहे हैं, ये पीछे जा रहा है, ये ऑन प्लेन है। अच्छा, यहाँ पे तो लॉन पेयर थे, यहाँ पे भी लॉन पेयर है। जैसे एक ऐसा हम समझते हैं, कुछ ऐसा कुछ समझना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो कि इसकी तो एक पेयर थी और एक हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये इसका क्या है? ये दोनों क्या है? इसका लॉन पेयर है। ठीक है, तो ये लॉन पेयर्स जो हम दिखा रहे हैं, ये लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो डेफिनेटली sp3 ही है। यानी उसका शेप क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, बराबर है। लेकिन हमें मालूम है कि वो बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन पेयर्स की होने की वजह से वो V शेप में चला जाएगा। तो वाटर का जो शेप मुझे मिल रहा है वो क्या मुझे मिल रहा है? V शेप मिल रहा है और उसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री पे चला जा रहा है। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस का मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिया। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट वन मैंने एग्जांपल्स आपको किसका दिया था? मीथेन का दिया था। फिर मैंने किसका दिया था? अमोनिया का दिया। फिर मैंने किसका दिया? वाटर का दिया। ये परफेक्ट 109.28 परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। ये 107 डिग्री पे चला गया है और 107.8 भी हम बोल सकते हैं, और ये पिरामिडल शेप में चला गया है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 1 लॉन पेयर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये V शेप में चला गया, क्योंकि अभी शेप किसका देखना पड़ेगा मुझे? तो कि शेप तो मुझे बॉन्डेड पेयर का ही देखना पड़ेगा। तो ये जो है वो V शेप में चला गया है, तो इसकी वजह से ये 104.5 है। तो आपने ये 3 को कंपेयर कर लिया है, आपको समझ में आ गया है कि ये जो हम दिखा रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ था। ओके फाइन, अभी मैं फिर से आपको यहाँ पे एक और बात समझाना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं फिर से एक बात आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि वी हैव सीन दैट द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव अ न्यू शेप्स एंड न्यू डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। जैसे पहले थी वो p ऑर्बिटल थी, पहले s ऑर्बिटल थी, s का अपना शेप था स्फीयर, p का अपना शेप था डम्बेल, लेकिन जैसे वो मिक्स हो गए तो उसने नया शेप बना दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी बदल गई है, एंड दे कैन ओवरलैप टू गिव स्ट्रक्चर्स दैट हैव बॉन्ड एंगल्स दैट मच दोस फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंट। तो it is important to realize that hybrid orbitals are the part of the valence bond theory। ये जो valence bond theory थी ना, वो 1927 में हिटलर और लंदन ने दी थी, वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में जो लिनस पॉलिंग और स्लेटर दोनों साइंटिस्ट ने उसको अच्छी तरह से डेवलप किया। उसका डेवलपमेंट का जो मेन बेस था वो हाइब्रिडाइजेशन था। सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, but we use them to describe molecular structures that have been determined experimentally। Okay, so अभी क्या हुआ कि बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोसेस आई, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रोसेस एक्सपेरिमेंटली आई, उसमें मुझे ये भी बॉन्ड एंगल जो लिनस पॉलिंग ने ऐसे ही समझाया हुआ था, वो बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से पता चला कि इसका बॉन्ड एंगल है तो ये मुझे मिल रहा है, इसमें ये मुझे मिल रहा है। इस तरह से उसको पूरा एविडेंस है वो यहाँ पे हमने बताया हुआ है। फिर से अभी मैं थोड़ा अलग एक एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अदर एग्जांपल्स हम यहाँ पे कैसे तरह से आपको दिखा पाएंगे, ठीक है। तो मुझे एक और एग्जांपल्स यहाँ पे मुझे दिखाना है और वो है sp3। देखिए मैंने अभी जो sp3, sp2 और sp का एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए इसमें मैंने अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3, sp2 और sp हाइब्रिडेज जो हमारा बुक का जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का 4.6.2 नंबर का जो हमारा टॉपिक है, तो वो मैं उसमें आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले C2H6 का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए उसका C2H6 का जो हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें मालूम है ये अल्केन फैमिली का कंपाउंड है राइट। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C2H6 है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी हमें स्पेस में किस तरह से दिखाई दे रहा है वो मुझे देखना है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, तो क्या कार्बन है। कितने सेंट्रल एटम है इसमें, 2, यानी मुझे 2 बार उसका डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे उसका फोकसिंग कर ले, मैं ये कार्बन के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा ये कार्बन यानी 6 राइट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, हीलियम है 2s2 2s2 2p2, यानी ये 2s है और ये 2p है और ये empty है। ठीक है, अभी मुझे मालूम है कि ये कार्बन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग, मैं क्या बता रहा हूँ, कितने लोग जुड़े हुए, 1 2 3 और 4, क्योंकि डेफिनेटली ये होस्ट है तभी ये गेस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। हम जब इसकी बात करेंगे तब ये गेस्ट, यानी ये कार्बन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं वैलेंसी की बात कर नहीं रहा हूं, कितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, 4, यानी इसके घर में कितने गेस्ट आएंगे, 4, यानी इसके पास कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4। अभी कितने हैं, 2। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। लिनस पॉलिंग ने बताया है कि जो 2s का उसका जो पैड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से यानी नेचर से एनर्जी लेके वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी अभी ये 2s है और 2p है, 4 अनपैड इलेक्ट्रॉन है, तो आ जाए गेस्ट। नहीं, पहले गेस्ट को नहीं बुलाना है, पहले तो वो क्या करेगा, अपना रिनोवेशन करेगा, यानी 1s और 3p सॉरी, S का स्फीयर शेप है, इसका डम्बेल शेप है, वो 4 मिक्स करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डेवलप करेंगे। ठीक है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से हमें दिखाई देगी। देखिए अभी उसका क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो पा रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से हुआ क्या है कि देखिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ 1 2 3 4। अभी ये जो है 2s 2p ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी सभी sp3 हो गए हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ s आप देखेंगे, परसेंटेज ऑफ s कितने हैं, 25% है और परसेंटेज ऑफ p कितने हैं, 75% है। इसका मतलब कि हमारी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी वो थोड़ी लॉन्गर और थीनर होगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ s कम है। तो मुझे स्पेस में दिखाना है, क्योंकि 4
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाना हो तो बेस्ट एंगल ज्योमेट्री क्या बता रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं 109 डिग्री 28 मिनट्स पे रखना चाहता हूं। देखिए ये फर्स्ट वन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये जो मैं यहां पे बता रहा हूं वो चौथा है। मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बताई है, इसका मतलब आप ऐसा सोचिए कि ये जो चौथा है वो या पीछे है, देखिए पीछे है, राइट। ये क्या है, यहाँ ये बोर्ड पे है, ये आपके सामने आ रहा है दोनों, तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये sp3 हो गया। चलो इसका तो आपको मालूम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कि यहाँ पे हाइड्रोजन अपना 1s लेके आ जाएगा, इस तरह से दूसरा हाइड्रोजन भी अपना 1s लेके आ जाएगा, इस तरह से तीसरा हाइड्रोजन भी अपना 1s लेके आ जाएगा। यानी मैंने क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गए। अभी ये जो कार्बन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, तो अभी मैं भी दिखाता हूं। तो अभी चलो ये इसका काम हो गया। अभी मैं इसकी स्टोरी की बात कर रहा हूं। सेम स्टोरी है, 6 नंबर कार्बन यहाँ पे रखेंगे, 2 है, लेकिन हमें मालूम है कि इसके घर में तो 4 केस आ रहे हैं, तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। 4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, सेम एनर्जी लेवल लेंगे, फिर उसका 4 में दिखाता हूं। देखिए देखिए देखिए, ये फर्स्ट मैंने दिखाया हुआ है, दूसरा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीसरा है, और इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, ये चौथा है। देखिए ये है जो है पीछे है, ये आपके सामने आ रहे हैं, ये ऑन प्लेन है यहाँ पे, यानी मेरे पेपर पे ही है। तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया है, तो कि हाइड्रोजन अपना 1s लेके आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना 1s लेके आ जाएगा, यहाँ पे भी अपना 1s लेके आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि जो CH बॉन्ड बन रहा है, पहले तो वो बॉन्ड सिग्मा है, कितने हैं, 6 CH बॉन्ड बन रहे हैं, वो सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड ही बन सकते हैं। ठीक है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वही शेप के लिए जिम्मेदार है। फिर मुझे क्या मिला, तो कि 1 CC बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे CC बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, वो भी सिग्मा बॉन्ड है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना था वो sp3 1s की ओवरलैपिंग से बना था, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो sp3 की वजह से दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं आपको? तो ये जो sp3 कॉम्बिनेशन से हमें टोटल कितने यहाँ पे हमें बॉन्ड मिल रहे हैं, इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इसमें से ये जो sp3 1s का कॉम्बिनेशन है और ये sp3 का कॉम्बिनेशन की वजह से इस तरह से यहाँ पे मैं बॉन्ड दिखा पा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया? फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये जो मैंने इथेन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा मॉडल है। ठीक है, मॉडल मैंने इसलिए रखे कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये जो है कार्बन है, ये कार्बन है, उसका जो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ का न्यूक्लियस के बीच में हाइपोथेटिकल लाइन देखेंगे तो उसके ऊपर ही ओवरलैपिंग हुआ है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड है। ये sp3 से बना हुआ है। आपके सामने जो आ रहा है, देखिए आपके सामने एक आ रहा है, एक आपके सामने आ रहा है, 2 पीछे जा रहे हैं। या मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ ना, 2 आपके सामने आ जाए और एक पीछे है, इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, आप देखिए ये मैं पूरा इथेन का जो मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल आप दिखाई देगा, 10928 10928 10928 कहीं पे से भी देखेंगे तो ये जो मैंने आपको, और इसका टेट्राहेड्रल से, क्योंकि इसका भी टेट्राहेड्रल और दूसरा भी टेट्राहेड्रल है, दोनों टेट्राहेड्रल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन and bonding in ethane is similar to that we have to observe in the case of methane, is both the carbon atoms undergo sp3 hybridization. Of the 4 sp3 hybridized orbitals on each carbon, 3 overlap with a s orbital of 3 hydrogen atom, यहाँ पे 3 के साथ उसने बनाया हुआ है। The 4th sp3 hybridized orbital on each carbon overlap axially, यहाँ पे axially वो overlap होने की वजह से वो sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये जो CC बॉन्ड लेंथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये जो CC बॉन्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं वो नियर अबाउट मुझे 154 पाइकोमीटर यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम अल्केन में CC बॉन्ड के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो CH बॉन्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ थी CC की, और CH की जो बॉन्ड लेंथ मुझे मिल रही है वो मुझे 109 पाइकोमीटर यानी 1.09 एंगस्ट्रॉम मुझे यहाँ पे मिल रही है। समझ में आ गया आपको मैंने क्या समझाया आपको?
ठीक है। तो मैंने आपको आज मैंने ये समझाया हुआ है कि sp3, आज पूरा दिन मैंने sp3 ही बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने मीथेन देखा था, आज मैंने एमोनिया भी दिखाया, वाटर भी दिखाया। एमोनिया और वाटर में यूनिक ये था कि इसमें लॉन पेयर थी, इस वजह से उसके जो बॉन्ड एंगल में उसका जो बॉन्ड एंगल थोड़ा रिड्यूस हो गया, थोड़ा मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड हो गया, वो भी आपको पता है। फिर मैंने आपको आज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में C2H6 की बात की थी। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो समझाऊंगा वो मैं आपको अल्कीन और अल्काइन की बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फिर भी अच्छा, आपको यहाँ पे कई स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज किया हुआ है कि सर जी हमें होमवर्क में क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास एक इजी वे ये है कि आप अपनी NCERT की बुक खोलिए, वहां पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस का पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ था, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस का पॉइंट्स में मेरे पास यहाँ पे अमोनिया से लेके वाटर है, और फिर 4.6.2 में आपको एक ही पॉइंट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन C2H6 को आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको वो जो थोड़ी होमवर्क की दिक्कत थी, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने जेडी ली की बुक्स यूज कर रहा था, तो एक दो, क्योंकि जेडी ली की ये जो भी मैं बुक यूज कर रहा हूँ ना, जेडी ली की, वो भी बेसिक बुक में यूज कर रहा हूँ, उसकी में बहुत डेप्थ है। दूसरी ये भी है बुक, उसमें मैं जो ये पूरा समझा रहा हूँ ना, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी समझा सकता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा बात मैं करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बार बार के आप जो भी बच्चे 11th के यहाँ पे आपके अपने साथ पढ़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जो मेरा YouTube का वीडियो है आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर दिया है। बाद में क्या है कि लिंक है और जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है ना, वो मैं प्राइवेट कर दूंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब हो गए तो आपको पता चल जाएगा, बाकी को पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, उसको भी आप वीडियो डेफिनेटली भेज सकते हैं, ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि भाई कितनी डेप्थ तक हम पढ़ सकते हैं या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।